سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اثر کی نگہت سعید خان کا کہ انہوں نے اس کانفرنس کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے غیر ملکی تنازعات کے ساتھ ملکی اور علاقائی تنازعات کو بھی شامل بحث رکھا۔ امن کے حوالے سے یہ کانفرنس ہمارے لیے اس لیے بھی منفرد نظر آتی ہے کہ ہمیں اس میں کوٹ ٹرائیوں والی جو کلاس ہوتی ہے اس سے زیادہ ان لوگوں کی اکثریت نظر آتی ہے کہ واقعی جو ان تنازعات کا شکار بنتے ہیں اور کسی بھی کانفلکٹ میں یہ فلائٹ پکڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں، اور جب بھی کوئی یہاں پر بات ہوتی ہے تو یہ اپنی زندگی، ان کا جینا مرنا یہیں پر ہے۔ تو یہ اجلاس بھی جو ہے بند کمروں کے اس اجلاس سے بالکل مختلف ہے جہاں پر اس اکثریت کی شمولیت کے بغیر اور ان کا موقف جانے بغیر ہم لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں اور اپنے دل کو بہلا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ ہم اس اکثریت کو جو ملکی، صوبائی اور علاقائی تنازعات کا شکار بنے ہیں وہ اس کانفرنس میں نہ صرف شریک ہیں بلکہ ہم اس تنازعات کے حوالے سے اس توقع پر کچھ بات بھی کریں گے کہ کوٹائیوں کی اکثریت نہ صرف اس پر غور کرے بلکہ اس کانفرنس میں ہی ہمارے ساتھ مل کر اس تنازعات کے ممکنات جو حل نکل سکتے ہوں اس کے لیے کوئی مستقل حکمت عملی تیار کرے۔ یہ نہ ہو کہ ہم یہاں پر آئے ہیں باتیں کر کے چلے جائیں اور اس کے بعد ہم ریزولوشن زیادہ سے زیادہ پاس کرا لیں۔ اگر اس سلسلے میں کوئی ممکنہ پاسبلٹی نکل سکتی ہے کہ ہم مل بیٹھ کر کچھ اس قسم کی کمیٹیز بنا سکیں، کچھ اس قسم کی چیز بنا سکیں جو وہ مستقل طور پر ان تنازعات کو دیکھتی آئے، تو میرے خیال میں یہ زیادہ ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہوگا۔ اب میں سندھ کے حوالے سے بات کروں تو بات ہماری یہاں سے شروع ہوتی ہے، وہی کہ آئین کے بننے میں 9 سال کیوں لگے۔ جو 9 سال لگے ہیں، جیسے بنی نے بتایا کہ ایک زبان کا بھی مسئلہ تھا، اور پاکستان بننے سے پہلے ہمارے پاس جو بھی کلچرل یونٹس تھے جنہوں نے پاکستان بنایا، ہم ان کو صوبہ کہہ دیں، آپ علاقہ کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، ان کی جو کلچرل آئیڈینٹی ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کی زبان کی وجہ سے وہ مین فیکٹر ہوتا ہے زبان کا جو ان پر حاوی ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے اگر پھر سندھ کے حوالے سے بات کریں تو سندھ موجودہ پاکستان کے ریفرنس میں وہ واحد صوبہ ہے جنہوں نے پاکستان کے قیام سے پہلے ہی سندھ اسمبلی میں پاکستان کے لیے بل پاس کروا دیا تھا اور اس کی اکثریت نے قبول کیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی بدقسمتی بھی یہ ہے کہ سارے فیڈرل یونٹس کو جو کہ 1940 کی قرارداد مقاصد کے تحت اس فیڈرل یونٹ میں شامل ہوئے تھے، وہ نہ صرف انسیٹسفائیڈ ہیں، اس کے ساتھ وہ ایک عدم تحفظ کا بھی شکار ہیں، کیونکہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں جانتے تک نہیں ہے کہ ان کا یہاں پر کیا ہونے والا ہے اور جو ہے ان کے فیصلے کون اور کہاں بیٹھ کر کر رہا ہے۔ تو میں لینگویج کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات کروں گی اس ہسٹوریکل پرسپیکٹس میں۔ سب سے پہلا بنیادی تنازع جو فیڈرل گورنمنٹ اور صوبوں کے درمیان پیدا ہوا وہ لینگویج کا تھا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد اردو کو قومی زبان بنایا گیا، جس سے پھر بنگال میں جو ہے فساد شروع ہوئے اور 48 میں ہی اس کو جناح صاحب کو جانا پڑا ڈھاکہ یونیورسٹی، اور جہاں پر پھر انہوں نے اعلان کیا کہ اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اردو ہماری قومی زبان ہوگی۔ اچھا، قیام پاکستان کے بعد جو ٹوٹل مائگریشن ہوئی وہ بھی اصل آبادی کا محض 9.8 حصہ بنتی ہے، تو اس حساب سے بھی یہ فیصلہ کوئی لاجیکل نہیں لگتا تھا کہ اردو کو قومی زبان بنایا جائے، کہ وہ جبکہ پاکستان کے موجودہ اس ٹائم کے جو یونٹ بنا تھا اس میں بھی اس کی کوئی ریجنل اسٹیٹس بھی اس زبان کو حاصل نہیں تھا۔ بنگال میں اور خصوصاً سندھ میں بہت بڑے پیمانے پر اس کا شدید رد عمل سامنے آیا، لیکن اس کے ساتھ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے طرف سے نئی ٹرمز بھی ملی، جیسے انہوں نے ان کو نام دیا صوبائی تعصب یا لسانی فرقے واریت۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے اپنی حقوق کی تو وہ اس کو فرقے واریت اور تعصب میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1940 کی قرارداد پاکستان میں پاکستان کا ڈھانچہ کچھ اور تھا، لیکن 40 کے بعد پاکستان کا پاور اسٹرکچر کچھ اور طریقے سے بنا۔ مہاجرین کی آباد کاری میں بھی چھوٹے صوبوں کے خدشات صحیح نکلے۔ خیرپور اسٹیٹ اور سندھ میں مہاجرین آبادی کے حساب سے 11.7
परसेंट उन लोगों को आबाद किया गया और यहाँ से ही सिंध के अर्बन एरियाज की डेमोग्राफिकल कंपोजिशन को छेड़ा गया और उसको चेंज करने की शऊरी तौर पे कोशिश की गई। बात यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई, यूपी के कल्चर को कराची का कल्चर बना दिया गया और कराची को सिंध की राय को बाईपास करते हुए विफाक में शामिल कर दिया था। ये सिंध की कराची से अलहदगी की हिस्ट्री से, सूबे की, या आप कह लें कि सिंध की वो नेशनलिज्म की, उसकी डिप्रीवेशन की एक नई स्टार्ट थी। और फिर जो है मुहाजिरीन और पंजाबी इलीट ने मिलकर उसका जो पावर स्ट्रक्चर बना हुआ था, एक तरफ पंजाबी हमारी उसमें आर्मी शामिल थी और जो है उर्दू बोलने वालों का जो ब्यूरोक्रेटिक फैक्टर उसमें शामिल था। उन्होंने एक और जो है इस्तिलाह जो है दी, पाकिस्तानी इस्लामी शनाख्त, तो उसमें से जो है हमारे सूबों का बिल्कुल जो है रोल निकल गया। सिंध का उस टाइम पर भी सवाल सिर्फ ये था कि मुहाजिरीन को सिर्फ अर्बन एरियाज में क्यों आबाद किया गया है। अगर उनकी रिहेबिलिटेशन होनी थी, कुछ भी होना था, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। तो उसका जवाब हमारे पास इसके सिवा कुछ नहीं है कि उस वक्त लियाकत अली खान को इलेक्शन के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए थी। कराची को सिंध से अलग की दरअसल सिंध के लिए पाकिस्तान बनाने की पहली कीमत थी जो उसको चुकाना पड़ी। कराची की सिंध से अलगगी का पहला प्रपोजल ही जो सिंध असेंबली में पेश किया गया था, वो बड़ी अक्सरियत के साथ उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बावजूद हमें जो अभी आइन और इसके किस्से बैठकर सुनाते हैं, तो ये आइन की भी जो वायलेशन है ये यहीं से शुरू होती है। जो हमारा पावर स्ट्रक्चर है वो उसको किस तरीके से वायलेट करता आता है। कराची की अलगगी के बाद भी सिंधी कौम की शनाख्त पर दूसरा हमला सिंध यूनिवर्सिटी की कराची से हैदराबाद मुंतकिली था, जो यकीनन कम तरक्की याफ्ता इलाका था। और कराची से सिंध यूनिवर्सिटी की निकाली से ये हुआ कि 1952 में कराची यूनिवर्सिटी के क़याम ने सिंधी लैंग्वेज को लिटरली कराची से धकेल कर बाहर फेंक दिया, जिससे सिंधी ज़बान के लिए सिंध में कई तहरीकें चली, जिसमें जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने, फिर वो शागिर्द थे, इंटेलेक्चुअल थे, लिटरेरी लोग थे, सब ने भरपूर हिस्सा लिया। 57 और 58 में कराची यूनिवर्सिटी ने सिंधी ज़बान पर बैन लगा दिया। और मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि अब तक कराची यूनिवर्सिटी में इंटीरियर सिंध का कोई भी स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकता जब तक उसके पास कराची का डोमिसाइल ना हो। इंटीरियर सिंध के डोमिसाइल रखने वालों को अब भी कराची यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन अलाउ नहीं है सिवाय सिंधी डिपार्टमेंट के। हारी कमेटी के हैदरबख्श जोतोई ने ये सिंधी जबान को कराची यूनिवर्सिटी से निकालने पर उसने एक रिमार्क्स दिया था, उसने एक पम्फलेट लिखा था, उसमें कहा था कि ये ऐलान दरअसल हम सिंधियों के लिए ये ऐलान है कि अब कराची तुम्हारे लिए नहीं है, अब कराची पर से अपना दावा छोड़ दो। जबकि उस वक्त कराची में 5 लाख सिंधी बोलने वालों की आबादी थी। उस वक्त से कराची से 5 सिंधी अखबारें डेली निकलती थी और लातादाद हफ्तेवार सिंधी अखबारें वहां पर हफ्तेवार छपती रहती थी। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो लैंग्वेज के हवाले से हमारा वो सेंटर था जहां से उन्होंने हमें धकेलना शुरू किया। अब सिंधी मुकम्मल तौर पर कल्चर, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और सियासी सतह पर, हर सतह पर महरूमी का शिकार थी। बंगाल की तरह यहाँ पर भी एस्टेब्लिशमेंट इस महरूमी के नतीजे में उठने वाली अवामी तहरीक को दबाने के लिए 1 यूनिट थोप दिया गया और इससे सिंध में एहसास महरूमी की शिद्दत में और इजाफा हुआ और नतीजन एक और तहरीक चल पड़ी, क्योंकि अब सिंधी जबान महज रीजनल जबान थी, जहां से वो अंग्रेजों से पहले जो उसका स्टेटस था उस स्टेटस से भी उसको कम स्टेटस दिया गया। पाकिस्तान ने तो सिंधी को वो स्टेटस भी नहीं बख्शा जो अंग्रेज हुकूमत के दौर में था। और उस वक्त सिंधी अदीबों की तहरीक, सिंधी अदबी संगत, और यहाँ पर हमारे कुछ हजरात सिंधी अदबी संगत के लोग बैठे हुए भी हैं, वो इस बात के भी गवाह होंगे कि 1 यूनिट की मूवमेंट में सिंधी अदबी संगत ने भरपूर हिस्सा लिया और वो उसने जो है इस बात को रियलाइज किया और पूरी कौम को आगाह किया कि जबान के और इक्तिसादी और सियासी कुव्वत के दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है। और यही जो है हमारे फिर जो है मूवमेंट जो है सिंधी नेशनलिज्म की मूवमेंट के तौर पर जो है अयूब के दौर में एंटी 1 यूनिट तहरीक के नाम से उभरी, जिसमें यहाँ पर हमारी एक और जो है मरियम पलीजो साहबा और दूसरे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने
खुद इस तहरीक में हिस्सा लिया हुआ है। अयूब खान की मार्शल सिंध की तारीख का वो सियातरीन बाब है कि सिंध अभी तक उसके असर से आजाद नहीं हुआ। जब अयूब के दौर में सिंधी जबान को कराची से निकाली दी जा रही थी तो उस वक्त सिंधी नेशनलिज्म में सिंधी शाम और सिंधी दिन के हवाले से हम कुछ इवेंट सेलिब्रेट कर रहे थे कि ताकि वो अपनी इस डिप्रीवेशन को किसी तरीके से किसी हद तक अपने अंदर में कुछ खत्म कर सके। जब कराची सिंध से जुदा हुआ तो उस वक्त कराची में सिंधी स्कूलों की तादाद 57 और उर्दू मीडियम की तादाद 69 थी, लेकिन अब की सूरत हाल ये है कि अब कराची में सिंधी मीडियम स्कूल बिल्कुल ही नहीं है। ये हम 57 की बात कर रहे हैं। उसके अलावा इक्तिसादी तौर पर हम अगर अयूब ईरा को देखते हैं तो अयूब ईरा में ये कोटली बैराज बनता है, तो कोटली बैराज की सारी जमीनें जो है रिटायर्ड फौजियों को अलाट की गई। मैं अभी जो है वो बदकिस्मती से वो आप फिगर्स नहीं ला सकी, वरना मेरे पास इसके फिगर्स भी थे कि कितनी जमीन कहाँ को और किस किस जर्नल को दी गई है। तो उससे भी अलावा ये होता था कि अगर कहीं पर मलका तरन्नुम नूरजहां या किसी ने अच्छा गाना गा दिया तो उसको भी जो जमीन तोहफे में दी जाती थी तो वो सिंध की जमीन होती थी। नेचुरली हमें एक ये भी एहसास पैदा हुआ था जिन लोगों को सिंध की जमीनें मिलती थी ऑटोमेटिकली हमारे अंदर में एक उनके खिलाफ एक नफरत का कह लें या एक उनसे एक रिलेशनशिप वो बन जाता था। 11 जून को 1965 में हैदराबाद म्यूनिसिपल कमेटी ने उसने भी सिंधी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर बाहर निकाल फेंका। ये हैदराबाद कराची हुआ, उसके बाद हैदराबाद की हम बात कर रहे हैं, ठीक। और बात की तारीख तो इससे भी ज्यादा अफसरदा है कि सिंध में ज़बान और कल्चर के हवाले से फसाद जो हुए वो अल-शम्स और अल-बदर जैसी तंजीमों की तरफ से हुए, और हम सब जानते हैं कि वो तंजीमें किसने बनाई और क्यों बनाई, उसका जो है पॉलिटिकल रीजन क्या था। सिर्फ सिंधी नहीं, पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर ने अपने तमाम सूबों जिनको मैं कौमी यूनिट कहूंगी न सिर्फ मायूस किया मगर उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट का सलूक हमेशा कॉलोनी जैसा रहा। क्या ये हैरत अंगेज बात नहीं है कि हर डिक्टेटर, फौजी जनरल या हमारी जमहूरी हुकूमत ने हमारी आर्मी बलूचिस्तान में हमारे ही लोगों के खिलाफ लड़ी है, और इसी एस्टेब्लिशमेंट की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री ने हमेशा छोटे सूबे के लोगों को गद्दार और काफिर की लेबलिंग का नाम दिया है, फिर वो शेख मुजीबुर रहमान हो, जीएम सैयद हो, खान गफ्फार खान हो, शेर मोहम्मद मरी हो, लेकिन हमने कभी आज तक ये नहीं सुना कि पंजाब के किसी भी बंदे को जो है गद्दार या काफिर कहा गया हो। ये भी एक अजीब बात है कि ये एक रिलेशनशिप की जो है निशानदही करता है कि कानूनी और कॉलोनाइज्ड जो पीपल्स हैं वो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाते हैं। उसके बाद हमारे पास और भी काफी प्रॉब्लम्स है जो वक्त की कमी की वजह से हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। ये डेमोग्राफिकल चेंज है। अब सिंध की आबादी जो है, असल सिंधियों की आबादी 60% से भी ज्यादा कम हो चुकी है। उसमें नेचुरल और अननेचुरल जो दोनों शामिल हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा है अभी हमारे वजीर खजाना, सिंध के वजीर खजाना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसका मैं थोड़ा सा हवाला दूंगी कि उन्होंने कहा है कि सिंध में 50% बिलो पॉवर्टी लाइन जो है ये रेशियो है गुर्बत का। 50%, 82% ये इससे हमारे इसके सूबाई वजीर के जो है डिजिट्स हैं, और उन्होंने कहा कि 82% जो है अनएम्प्लॉयमेंट है सिंध में। हम सिर्फ यहाँ पर ये सवाल करते हैं कि जब रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता है तो सबसे ज्यादा रिवेन्यू जब सिंध भरता है तो वहां पर सबसे ज्यादा गरीब सूबा हमारा सिंध क्यों है?